is nothing but the x component of the vector, और y को बोलते हैं y component of the vector and z is z component. मतलब z दिशा में उसकी component की वैल्यू है ये. अब ये component जो मैं वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ उसको मैं अभी समझाता हूँ क्या चीज़ है. But to write down the direction cosine of a three-dimensional vector, what we need to do is if you are given a vector, उस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और पहले इसकी x कंपोनेंट को लेके उसको उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे. जैसे अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल a वेक्टर का हमें cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकालना हो तो इसका x जो है वो क्या है, वो 2 है और मॉड a हम निकाल चुके हैं वो √38 है. तो इसका मतलब a वेक्टर के लिए हो जाएगा x की वैल्यू है आपकी 2 और मॉड a की वैल्यू है आपकी √38. सिमिलरली y की वैल्यू 3 है, अगेन मॉड a की वैल्यू √38 है. तो ये हो जाएगा 3, √38 और फाइनली z अपॉन √38 विल बी cos गामा. तो cos गामा की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन √38. So you're able to see that the three direction cosines are 2 by √38. कैसे निकाला हमने डायरेक्शन कोसाइन? हमने इसका x कंपोनेंट लिया, जो i कैप के साथ जो नंबर आ रहा है वो लिया, उसको हमने डिवाइड किया इसकी लंबाई से. इसकी लंबाई कैसे निकाली हमने? डिस्टेंस फॉर्मूले से. डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ से लिया? यहाँ से लिया. तो हमने 2 by √38 किया तो हमें cos अल्फा मिल गया. 2 by √38, 3 by √38 के cos बीटा मिला और 5 by √38 cos गामा मिला. So one thing that I told you is how do you really write cos alpha cos gamma as like this? You can simply prove it geometrically by drawing a vector in 3D, visualizing it. And another thing I want you to prove is that for any vector, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1 होता है. So for any vector, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. So I am giving you two homeworks. One is that you have to prove that cos square alpha plus cos square beta cos square gamma is equal to 1. दूसरा ये कि भाई cos alpha cos beta cos gamma की वैल्यू x by r, y by r और z by r कैसे आती है. Now I will give you another example of a three-dimensional vector जिसमें i cap j cap k cap तीनों आएगा और उसमें again you will repeat the same thing. You will find out the direction cosines and you will also find out the magnitude of the vector. So let me give the second example. So let's take another vector. Let's take vector b to be equal to minus 2i cap plus 5j cap minus 6k cap, and I am telling you find out mod b and also cos alpha, cos beta and cos gamma. So very easy, as I told you, mod b अगर निकालना हो तो बहुत ही आसान है. इसको आप स्क्वायर करिए, -2 को स्क्वायर किए, फिर 5 को स्क्वायर कीजिए, -6 को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए. So it will be -2 square plus 5 square plus -6 square, which will become 4 plus 25, 29 plus 36. So you will get root of 29 plus 36, which is root of 65. तो आपने मॉड भी निकाल लिया. cos अल्फा निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? -2 डिवाइडेड बाय √65. cos बीटा के लिए क्या करेंगे? 5 divided by √65. cos gamma -6 divided by √65. So easy. Procedure आपको एक बार क्लियर हो गया तो it is easy to calculate because you have all the three components. Each component से उसकी मैग्नीट्यूड डिवाइड करो तो cos अल्फा मिल जाएगा. इसमें भी आप वेरीफाई करके देख सकते हो कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आएगा. It's easy to prove. I am telling you. Just start attempting to do this because mathematics will be there in physics, so that part you have to anyway learn. तो 11th में अगर आपने सीख लिया तो आपको फिजिक्स आसान लगेगा.
फिजिक्स में मैथमेटिक्स एप्लीकेशन होना ही पड़ेगा, क्योंकि 11th-12th है, सीनियर क्लासेस हैं, तो उसमें आपको एप्लीकेशन आएगा ही. So now once you know how to deal with the analytic representation of vectors in 2D and 3D, है ना. अब हम adding and subtracting vectors ठीक है, बहुत ही सिंपल है. एनालिटिक फॉर्म में ऐड सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है. इसमें पैलोग्राम लाने की जरूरत नहीं है, ना ट्रायंगल लाने की जरूरत है. डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं. गिवन A vector equal to I cap plus 2j cap minus 3k cap and B vector is equal to 2I cap plus j cap plus k cap. Find ये सारे वेक्टर्स आपको निकालने हैं. A वेक्टर प्लस 2 टाइम्स B वेक्टर, A माइनस 3B वेक्टर. ये दो चीज हम निकाल के देखते हैं. राइट? कैन यू जस्ट थिंक ऑफ इट? आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू इट वेरी इजीली. वेक्टर ए को जैसा है वैसे उतार लो यहां पर. आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप. बी वेक्टर के साथ 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हर एक आदमी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आप देख पा रहे हो कि आपको 2 को हर एक इस नंबरों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पर तो 1 और 1 अंडरस्टूड है. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4. तो ये जो 2b वेक्टर क्या बन जाएगा, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप. अब हमें ना सब ऐड करना है, बिकॉज पहले वाले में हमें ऐड करना है. तो i कैप प्लस 4i कैप में क्या होगा, 1 प्लस 4 हो जाएगा 5. तो ये बन जाएगा 5i कैप, 2 प्लस 2 4, तो 4j कैप, माइनस 3 प्लस 2 माइनस j कैप. करेक्ट, माइनस k कैप. इट्स सो इजी, इट्स सिंपल अलजेब्रा. Similarly, I would like that try this as a homework and tell me what you get. You will do a very simple thing. B को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना, तो हर एक कोफिशिएंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और A से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अगर आपको बोला जाए कि फाइंड व्हाट इज A माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. यहीं पे मैं कर देता हूँ. यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस आई कैप, 2 माइनस 1 प्लस j कैप और माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4k कैप. तो जब मैं इस पूरे वेक्टर के ऊपर एक मॉडुलस लगाऊं तो इसमें डरने का कुछ नहीं है. बेसिकली ये जो नंबर्स आ रही हैं इनको लेके स्क्वायर करके ऐड करना है. तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 को स्क्वायर कर लेंगे. तो माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, ये 16 हो गया. 16 प्लस 2 रूट 18 हो जाएगा. 9 2 18 होता है, तो 3 रूट 2 यूनिट्स आ गए इसकी लंबाई. सो यू हैव बीन एबल टू डू सो मेनी थिंग्स विद एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन. इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर्स जैसे एनालिटिकल फॉर्म में दिया होगा तो उसको जोड़ घटा के उसकी मैग्नीट्यूड्स निकाल सकते हैं. एंड इट इज सो सिंपल. इट्स बेसिकली अलजेब्रिक ऑपरेशंस नाउ. एंड that is what really happens when you go to the analytic representation. Geometric representations में adding subtracting थोड़ा difficult हो जाता है, लेकिन analytic में it is much easier. So let's now do 1 or 2 more questions and then we'll come to the 2 last topics of vectors, that is product of 2 vectors. ठीक है ना. Now एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 3 वेक्टर्स ले लेते हैं. A इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. B वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. और C वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप. तो आपको दिया है क्वेश्चन, फाइंड मॉडुलस ऑफ A माइनस B प्लस 2C and also their direction cosines. ये दो चीजें निकालनी है. एक तो मैग्नीट्यूड निकालनी है A माइनस B प्लस 2C वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका डायरेक्शन कोसाइंस भी निकालनी है. तो हम क्या करेंगे,
पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे सब लिख देते हैं। ए वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, माइनस बी वेक्टर क्या है भाई, माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप हो जाएगा, और 2 सी वेक्टर क्या हो जाएगा, 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 4 के। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 6 कितना हो गया, प्लस 5, तो 5 आई कैप हो गया। 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0, तो प्लस 0 जे कैप हो गया। 1 माइनस 1 0 माइनस 4, तो माइनस 4 जे कैप। तो ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड बहुत आसान है, √5 स्क्वायर प्लस √0 स्क्वायर प्लस √4 स्क्वायर, तो 25 प्लस 16 इज इक्वल टू 41। तो मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, √41 हो जाएगा। आई एम डूइंग इट ओरली, यू कैन डू इट अगेन। You can calculate that 25 plus 0 square plus 16, 16 plus 25 कितना हो गया, 16 plus 25 is equal to 41। तो √41 का वैल्यू जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी। अब आपको डायरेक्शन कोसाइन लिखना है तो कॉस अल्फा के लिए यही वेक्टर को लेंगे और ये जो वेक्टर है इसका 5 ले लेंगे, 5 और इसको √41 से डिवाइड कर देंगे। कॉस बीटा में क्या करेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन √41 तो 0 हो जाएगा। तो cos गामा क्या हो जाएगा, -4/√41। So you got all the answers so easily, so quickly. तो analytic representation is a very convenient way of doing numericals and questions and vectors. Particularly relative motions में जब हम बात करेंगे तो it is always a very excellent approach to solve these problems in vector form. So now we will come to the last two topics of vectors, which is called as a product of two vectors. But before that, one topic is left out, उसको हम कर लेते हैं, resolving of vectors. इसका मतलब होता है, resolving का मतलब होता है, resolving means the opposite of adding, मतलब we are breaking a given vector into many parts. When a vector is represented as a sum of two or more vectors, then the process is called resolving, and the vectors obtained are called components. When the obtained vectors are only two and they are perpendicular, then they are called orthogonal components. तो एक वेक्टर को मैं रिजॉल्व करके आपको दिखा दूंगा तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रिजॉल्विंग। So please understand once again, resolving when a vector is represented as a sum of two or more vectors, then the process is called resolving, and the vectors obtained are called as the components of the original vector. When the obtained vectors are only two and they are perpendicular, then they are called as orthogonal components. मतलब अगर किसी वेक्टर A को हम sum of A, B, C लिख दें तो I can always say that A, B, C are components. Why these A, B, C are components? Because इन सब का तीनों का जो एडिशन है वो क्या बन गया है, इन तीनों का एडिशन बन चुका है ओरिजिनल वेक्टर A.
अगर इसी वेक्टर ए को अगर हमने इस तरह और इस तरह से रिजॉल्व किया होता